आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन एक्सप्रेशन विच रेफर टू द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूस द अननेचुरल चेंज ऑन द क्लाइमेट. It is an increase in earth temperature due to burning of fossil fuel, coal, oil and gas, and large scale deforestation, which results in emission of large amounts of greenhouse gases to the atmosphere. Causes of global warming. What are the causes of global warming? Greenhouse effect and gases, agriculture, deforestation, burning of fossil fuel gases. The major source is carbon dioxide and 20% by methane and nitrous oxide. ये इसके कारण हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है. Now what is the greenhouse effect? Greenhouse प्रभाव क्या है? Greenhouse is the phenomenon in which the heat and light of sun enters to the earth atmosphere but cannot go out as they are trapped by greenhouse gases. As a result, temperature rises. Many gases are found in greenhouse such as carbon dioxide, NH3, N2O and water vapor and some other gases. मेजर गैसेस कौन कौन सी हैं इसमें? वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है. वाटर वेपर 36 से 70% है, कार्बन डाइऑक्साइड 26% है और मीथेन जो है वो 4 to 9% है. दिस फिगर शोज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ. एग्रीकल्चर इफेक्ट. एग्रीकल्चर इफेक्ट क्या है? Produce large amount of methane and nitrous oxide worldwide as accounted by IPCC, Environmental Panel on Climate Change. There are numerous agriculture sources of greenhouse gases. Livestock grazing, waste management and gases contribute half of the emissions produced by agriculture. Nitrogen fertilizers release nitrous oxide and comprise 35% of agriculture emission. तो जो भी खेती में फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं उनसे जो गैसेस एमिट होती हैं उनसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और गैसेस जो हैं वो इसको इंक्रीज़ करने में अपना योगदान देती हैं. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स में यूरिया आता है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और करीब 35% एग्रीकल्चर एमिशन का योगदान जो है वो इसी से होता है. डिफॉरेस्टेशन. नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. डिफॉरेस्टेशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 1/4 of the amount of carbon emitted to the atmosphere. The planet cuts and burns nearly 34 million acres of trees, including million acre. Trees and plants provide us pure, clean, breathable oxygen as a free byproduct of the plant life cycle. तो डिफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं और पेड़ों के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग करते हैं. लेकिन जब पेड़ ही कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता जाएगा. गैसेस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है? The major source carbon dioxide is the power plants. Burning of fossil fuels for the purpose of electricity generation. About 20% of carbon dioxide emitted in atmosphere comes from burning of gasoline in the engines of vehicles. Gasoline के burn होने से 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर की वो निकलती है. नेक्स्ट है मीथेन. मीथेन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसोर्सेज सच एज राइस, पैडीज, बोवाइन फ्लैचुलेंस, बैक्टीरिया इन बोक्स एंड फॉसिल्स फ्यूल मैन्युफैक्चर. तो फॉसिल फ्यूल्स के निर्माण करने में मीथेन का योगदान रहता है जिससे मीथेन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाती है. नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड.
The main sources of nitrous oxide include nylon and nitric acid production, all use of fertilizers in agriculture, and the burning of organic manures. These figure shows the burning of fossil fuels, pollution from coal, natural gas and oil. Now, what are the consequences? The effect of global warming is increasing the average temperature of the earth. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. Alteration in the ecology, including an increasing sea level and modifying the quantity and pattern of rainfall. इंक्रीज इकोलॉजी का ऑल्ट्रेशन, जो अपना एनवायरनमेंट है वो चेंज होता जा रहा है लगातार, और रेनफॉल जो है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. बूस्ट द अकरेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीवियर क्लाइमेट इवेंट्स सच एज फ्लड्स, फेमिन्स, हीट वेव्स, टॉर्नेडोज एंड ट्विस्टर्स. ग्लेशियर मेल्टिंग, लेसर समर स्ट्रीम फ्लोज, जीनस एक्सटिंक्शन एंड राइज इन द रेंजेस ऑफ डिजीज़ वेक्टर्स. तो ग्लेशियर्स जो हैं वो लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं, मौसम जो है वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं, जो जीनस हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनका एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और डिजीज़ वेक्टर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वेरियस न्यू डिजीज़ेस हैव एमर्ज, नई नई बीमारियां जो हैं वो लगातार उत्पन्न होती जा रही हैं. The global warming is extending the distribution of mosquitoes due to the increase in humidity level and their frequent growth in warmer atmosphere. मच्छरों की पैदाइश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो अधिक होता जा रहा है. इफ़ेक्ट दी मैराइन लाइफ, जो समुद्री जीवन है उसको भी इसने काफ़ी प्रभावित किया है. Major climate change. If we do not act to reduce the emission of these heat-trapping gases, it is predicted that global temperature could rise 2 degrees Fahrenheit in the next 100 years. Just a few degree difference in the global average temperature can mean a major climate change. यदि हम इस पर नहीं रोकते हैं, इसके एमिशंस को नहीं रिड्यूस करते हैं, तो अगले 100 ईयर्स के अंदर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो रेस हो जाएगा, और इससे जो है बहुत नुकसान होगा हमारे क्लाइमेट को. द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रिलीज्ड कुड बी कंट्रोल्ड थ्रू प्रूडेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज़. मैन हैज़ टू एक्ट नाउ टू इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर वार्निंग बाई रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन. पोर्टेस ग्लेशियर है ये अलास्का का 1914 में, और ये आप देखिए यहाँ पर ये 2004 की पिक्चर है जहाँ पर ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गया है. अब आते हैं हम इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ पर. तो बायोडाइवर्सिटी पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है और ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है. Loss of habitats, disruption of aquatic species, extinction of some species. Habitats जो हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, aquatic species समाप्त होती जा रही हैं, और काफ़ी सारी species जो हैं वो extinct हो गई हैं. Human population increased, migration increased, death due to heat and disrupted food supply. तो ह्यूमन पॉपुलेशन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है. डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और हीट के कारण जो फूड की सप्लाई है वो भी डिसरप्ट हुई है. ह्यूमन हेल्थ, इंक्रीज डेथ्स फ्रॉम हीट एंड डिजीजेस, डिसरप्शन इन फूड सप्लाई, स्प्रेड ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस टू टेम्परेट एरियाज, इंक्रीज्ड वाटर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज फोटोकेमिकल स्मोक. ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन हेल्थ पर अपना प्रभाव डाल रही हैं. स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल. गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ये सबमिट हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ये ट्रिटी जो है वो साइन की गई थी. ए अनब्रोकर्ड ट्रिटी वॉज साइन बाई इन 1997 in Kyoto, Japan. It was called the Kyoto
प्रोटोकॉल। क्योटो जगह है जापान के अंदर जहाँ पर ये ट्रिटी जो है वो साइन की गई थी 1997 में। इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इट कमिट्स द रिच कंट्रीज टू बाइंडिंग कट इन देयर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कमिट किया गया था जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपना एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है उसको कट करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी आए। द डेवलप्ड कंट्रीज एग्री टू कट देयर एमिशन बाई ए कलेक्टिव एवरेज ऑफ 5% बिलो देयर लेवल्स इन 1990 बाई 2008 टू 2012। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ट्रीटी पर साइन कर के एग्री किया था कि ये जो है 5% तक कलेक्टिवली जो है एमिशन को रिड्यूस करेंगे, और यह काम जो है वो 2008 से 2012 तक हो जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2000 एंड डिस्कस्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। सिंपल थिंग्स टू डू, क्या कर सकते हैं हम? जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता कर सकते हैं। रीयूज़, रिड्यूस एंड रीसाइकिल, 3 चीज़ें हैं, रीयूज़, रिड्यूस एंड recycle. We can reduce the emission of carbon dioxide by choosing reusable products instead of disposables. यानी डिस्पोज हम ना करें चीज़ों को, उनका रीयूज़ करते रहें, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में जो है वो कमी आ जाएगी। We can prevent global warming by reduce the demand of fossil fuels and by using the energy more wisely. तो हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना जो है वो कम कर दें, जिससे एनर्जी जो है वो यूज़ होती रहेगी। यूजिंग कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट, CFL का इस्तेमाल करें। बाई प्लांटिंग ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अप ऑक्सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और ऑक्सीजन हमको मिल सके। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ जो है वो कम करें। ऑफर्स टू हेल्प योर पेरेंट्स कीप द एयर फिल्टर्स ऑन योर AC एंड फर्नेस क्लीन। AC में फ़िल्टर्स होने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सके, उसकी जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ना निकल सकें। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ए राइड इन द कार। व्हीकल्स का उपयोग कम करके हम जो पेट्रोल का कंजम्पशन है या जो गैस जो से रिलीज़ होती है उसको भी हम कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपनी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।